Very good morning students. How are you children doing? कैसे हो 8th क्लास? पढ़ाई शुरू करी वापस या नहीं? You have already got one lesson. So now start studying. You have all got a long break, 1 week break. So now coming back to our studies, we have already started the history chapter. Half we have done earlier and the remaining part we are doing now. About yesterday's lesson, we have done the result of commercialization, advantages, disadvantages of commercial crops, क्या फ़ायदे हुए क्या नुकसान हुए. Then about cultivators, the condition of cultivators, farmers. जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नए नए रेवेन्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किए, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, permanent settlement, how they changed the condition of farmers. Otherwise, Indian farmers were very rich. Not very rich, but they were living in good condition. But with these systems, their condition declined. हमारे farmers बहुत बुरी condition में आ गए. ये हमने कल समझा था. Now continuing the chapter, today we will read about the plight of the indigo cultivators. I have already told you the meaning of plight. क्या है? कंडीशन. जो इंडिगो उगा रहे थे, नील है ना, कपड़े रंगने के काम में आती है नील, तो वो जो कल्टीवेटर्स, जो फार्मर्स, वो उगा रहे थे अबाउट देयर कंडीशन. The plight of the indigo cultivators was even worse than the other cultivators. और भी बुरी थी. Indigo was grown in many parts of Bihar and Bengal. बहुत सारे फार्मर्स ग्रो करते थे, है ना, अंडरलाइन कर लो कौन से स्टेट्स, बिहार एंड बंगाल. एंड बाय 1850 इट प्रोवाइडेड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपोर्टेबल गुड्स फ्रॉम इंडिया. इंडिगो काफ़ी लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट होता था. बाय 1850 दूसरे कंट्रीज को भेजा जाता था. इट वॉज यूज एज द सोर्स ऑफ डाइज विच द ओनर्स ऑफ द क्लॉथ इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द मोस्ट for giving colorful designs to the different varieties of cloth. तो indigo was used to give color to the cloth. तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट लार्ज क्वांटिटी में इंडिगोस बाय करते थे. As the indigo trade became quite lucrative, फायदे वाला. What is the meaning of lucrative? Profitable. फायदे वाला हुआ. Many British residents engaged themselves in the indigo plantation. The Britishers who were living in India, they also wanted to do the trade of indigo. Such people came to be called as indigo planters. तो ये जो indigo farmers की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ पर उन ब्रिटिशर्स की बात हो रही है जो खेत लेकर, खेत खरीदकर उस पर फार्मर्स से इंडिगो उगवा रहे हैं. These planters executed agreements with the indigo cultivators और रैयत, है ना, farmers रैयत कहते थे. So what do these British planters do? ये जो हमने नाम पढ़ा ना indigo planters, ये कॉन्ट्रैक्ट पर इंडिगो उगवाते थे फार्मर्स से. These agreements look quite simple on paper. हाँ, देखने में तो बहुत सिंपल थे agreements, but they proved very disastrous for the रैयत because they were open to grave abuses. बहुत नुकसान वाले थे क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो देखने में तो बहुत सिंपल लगती थी लेकिन हमारे फार्मर्स के लिए बहुत गलत थी. The ryots were given a fixed rate for their produce, but after paying the price of seeds, price of stamp, ignoring wrong measurements by the indigo planters, gratuity paid to the different employees of the planters, the indigo cultivators were left with nothing. देखो ये सब था उसमें. सबसे पहले तो क्या होता था, they have to buy the seeds जो कि बहुत महंगे होते थे, इंडिगो सीड्स, तो उसके लिए पे करना है. फिर जो स्टैम्प पेपर्स हैं उसके स्टैम्प के पैसे दे रहे हैं वो. रॉन्ग मेजरमेंट बाय इंडिगो प्लांटर्स, नाप तोल में गड़बड़ कर जाते थे, हाँ, कम तोलते थे या जो भी थी वो गड़बड़ होती थी मेजरमेंट में. ग्रेचुटी पेड टू डिफरेंट एम्प्लॉयज बाय द प्लांटर्स, फिर वो जो प्लांटर्स के एम्प्लॉयज़ होते थे उनको जो पेमेंट्स करने पड़ते थे.
ये सब करने के बाद जो इंडिगो फार्मर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, क्योंकि ये सारा मनी उन्हें देना पड़ता था. इफ अ रैयत हैड टेकन एन एडवांस, अगर किसी फार्मर ने एडवांस लेकर ग्रो किया है, ही वॉज आफ्टरवर्ड्स नेवर अ फ्री मैन, एक तरह से गुलाम हो गया वो तो, जब अगर उसने एडवांस ले लिया तो. इफ ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, अगर वो अपने खेत पर नहीं उगाना चाहता था, ही वॉज नॉट अलाउड टू डू सो. एक बार इंडिगो ग्रो करना शुरू कर दिया, देन द फार्मर्स कैन नॉट चेंज टू अनदर क्रॉप, उन्हें तो अब ये ही ग्रो करना पड़ेगा. बाय न्यूमरस एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड वायलेंस, देखो अब ये सब होता था उनके साथ, उनके साथ वायलेंस होता था, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती थी. बाय लॉकिंग हिम एंड हिज फैमिली मेम्बर्स इन गोडाउन्स, बर्निंग द हाउसेज, बीटिंग देम, है ना, ये सब उन फार्मर्स के साथ होता था इफ दे रिफ्यूज टू पे इंडिगो फॉर टू ग्रो इंडिगो. दे वर फोर्स टू गो ऑन कल्टिवेटिंग द इंडिगो प्लांट्स, तो उन्हें तो अब इंडिगो ही ग्रो करना पड़ता था. द ब्रिटिश ऑफिशियल्स नॉट ओनली एक्टेड एज मियर स्पेक्टेटर्स, और जो ऑफिसर्स होते थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल इन कल्टीवेटर्स का फायदा कौन उठा रहा है? ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स. तो वो ब्रिटिशर्स कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे. बट दे ऑलवेज टुक द साइड ऑफ इंडिगो प्लांटर्स रादर देन द इंडिगो कल्टीवेटर्स, क्योंकि इंडिगो प्लांटर्स कौन है? ब्रिटिश. We find an echo of these deeds in the well-known drama नील दर्पण by दीनबंधु मित्रा. इन्होंने एक ड्रामा, एक प्ले लिखा है जिस नील दर्पण, उसमें ये इंडिगो प्लांटर्स की पूरी लाइफ बताई गई है. हाउ दे वर इन द क्लचेस ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ये जो कल्टीवेटर्स थे ये कैसे एक तरह से इनके गुलाम बनकर रह गए थे. तो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स. नाउ द पीजेंट रिवोल्ट्स, अब ये जो कंडीशन हो गई थी ना, इसकी वजह से पहले भी हमने वो कल्टीवेटर्स की कंडीशन पढ़ी, देन इंडिगो प्लांटर्स, इनकी इंडिगो कल्टीवेटर्स की कंडीशन पढ़ी. तो नाउ दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग, है ना, विद्रोह करने लगे, एंड इंडिगो रायट्स, दंगे हो गए. फ्रॉम द अबव अकाउंट it becomes quite clear that things had to come to such a pass that there was no alternative for the cultivators in general as well as an indigo cultivators but to revolt. Conditions ऐसी हो गई थी, इतना परेशान हो गए थे farmers, cultivators, that they have no other option left to revolt. The first major revolt broke out in Bengal. आफ्टर ऑल खेती भी कहाँ हो रही है इसकी, है ना, बंगाल में. सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट हुआ. सून आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. रिमेंबर, बंगाल वॉज द फर्स्ट स्टेट टू कम अंडर ब्रिटिश रूल. इट वॉज लेड बाय द पीजेंट्स अकम्पनीड बाय द सन्यासी एंड फकीर. इन लोगों ने भी फार्मर्स की हेल्प करी, हु ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, हथियारों के साथ लड़ाई करी. समटाइम्स अप टू 50,000, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए. इमेजिन द नंबर. एक ग्रुप में जो रिवोल्ट जब होता था तो दिस वॉज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे पार्टिसिपेटेड एंड जनरली हैरेस्ड द ब्रिटिश ट्रूप्स. और ब्रिटिश जो सोल्जर्स होते थे, ट्रूप्स कौन है? सोल्जर्स. उन्हें तो खूब डराया धमकाया जाता था और मारा पीटा जाता था. It took the British about 30 years to suppress the revolt. सोचो, जो पहला रिवोल्ट हुआ था बंगाल में, जिसमें फार्मर्स, सन्यासीज और फकीज ने पार्टिसिपेट किया था, उसको दबाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट को नियरली 30 years लग गए. Then in 1822, in Satara, चित्तूर एंड सूरत, लीडर ऑफ द रामोसी पीजेंट्स, ये भी एक एथनिक ग्रुप था वहाँ का, रामोसी पीजेंट्स, रेज्ड अ रिवोल्ट एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हैवी असेसमेंट, है ना. ये रिवोल्ट हुआ सतारा, चित्तूर और सूरत में. और इट वॉज ओनली इन 1825 दैट द गवर्नमेंट सप्रेस देम. इसको दबाया गवर्नमेंट ने 1825 में बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड डिप्लोमेसी.
आर्म्स की मदद से, हथियारों की मदद से और चालाकी से इस रिवोल्ट को दबाया गया. सम ऑफ देम वर रिक्रूटेड इनटू द पुलिस फोर्स, कुछ फार्मर्स को उसमें भर्ती किया गया. वाइल अदर्स वर पैसिफाइड बाय ऑफरिंग लैंड ग्रांट्स, तो कुछ पीजेंट्स को तो पुलिस में शामिल किया गया ताकि वो चुप हो जाएं, और कुछ को लैंड दिए गए ताकि वो अपना रिवोल्ट खत्म कर दें. Then in 1829 to 1830, the requirements of the British revenue system troubled the cultivators of the district of Sandowe, newly acquired from the ruler of Burma. Okay, तो ये बर्मा का एक डिस्ट्रिक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया था, और वहाँ उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स सिस्टम के खिलाफ वहाँ रिवोल्ट हुआ. अंडर द लीडर, और कौन है उनका लीडर? Menithayu, this is the name of the leader. The peasants burst police, burnt होगा ये, not burst, है ना, इसको चेंज करो बच्चों. This is burnt, BURNT. The peasants burnt police post, उन्होंने पुलिस पोस्ट जला दी. And committed depredation on a large scale, और बहुत तोड़फोड़ करी. Captain Caudle, who tried to repulse them, was killed. तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था कैप्टन कॉडल, उन्होंने इसे दबाने की कोशिश करी और इस चक्कर में उनको मार दिया गया. इवन आफ्टर अ लॉन्ग मिलिट्री ऑपरेशन द रिबेलियंस कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ द ईयर 1830 तक ये रिवोल्ट चलता रहा. बहुत कोशिश की गई आर्मी की मदद से इसको दबाने की, बट इट कंटिन्यूड टिल 1830. In 1835, there was another rebellion of the peasants in the Ganjam district under the leadership of Dhananjaya. He was the leader of the revolt, and with some intervals it went on till February 1837. तो ये एक और गंजम डिस्ट्रिक्ट में रिवोल्ट हुआ. The peasants forces cut off and blocked the passage of the British force by felling trees. तो पीजेंट्स ने क्या किया? गंजम डिस्ट्रिक्ट्स के जो ट्रीज थे वो काट कर और रोड पर डाल दिए, रोड्स को ब्लॉक कर दिया ताकि ब्रिटिश फोर्स वहां न आ सके. द रिबेलियन वॉज सप्रेस्ड ओनली आफ्टर अ मिलिट्री कैंपेन ऑन लार्ज स्केल, और ये इतना बड़ा रिबेलियन था कि ब्रिटिशर्स को आर्मी को बुलाना पड़ा इस रिबेलियन को खत्म करने के लिए. इन 1842 देयर वाज अनदर पीजेंट रिवोल्ट इन सागर अंडर द लीडरशिप ऑफ द बुंदेला लैंड ओनर मधुकर. ये बुंदेला थे और सागर डिस्ट्रिक्ट में रिवोल्ट हुआ. द पीजेंट्स ब्रोक इनटू रिबेलियन, किल्ड पुलिस ऑफिसर्स एंड प्लंडर्ड सेवरल टाउन्स. द गॉन्ड्स ऑल्सो ज्वाइन द रिबेल. स्टार्टिंग तो रिबेलियन किसने किया था? बुंदेलाज ने. फिर गॉन्ड कम्युनिटी ने भी इनको ज्वाइन किया. द स्ट्रगल कंटिन्यूड फॉर अ ईयर बिफोर द कंट्री वॉज पैसिफाइड, है ना, और ये कब तक चलता रहा? 46 तक. ठीक. देयर वर मैनी, देखो तो ये हमने इतने सारे रिवोल्ट्स पढ़े ना अलग अलग टाइम पर, 1822, 29 to 30, देन इन 35, देन इन 42. इंडिया के अलग अलग एरियाज में पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे हैं. There were many peasant revolt in many other parts of the country due to the imposition of heavy land revenue. सबके पीछे एक ही कारण था, वो हमने सिस्टम में पढ़ा था ना, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था और पीजेंट्स नहीं पे कर पा रहे थे. एंड ऑक्शन ऑफ द लैंड्स, दिस वॉज द मेन कॉज. Soon in 1849, there were the revolts of the peasants in the different parts of Punjab like Patiala and Rawalpindi. और ये 89 में फिर रिवोल्ट हुए बाय द पीजेंट्स ऑफ पंजाब, पटियाला एंड रावलपिंडी. द इंडिगो कल्टिवेटर्स डिड नॉट लैग बिहाइंड इन. अब ये भी पीछे नहीं रहे, ये तो चल ही रहे हैं फार्मर्स के. तो जो इंडिगो कल्टिवेटर्स हैं दे ऑल्सो रिवोल्टेड. दे डिड नॉट लैग बिहाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग रिबेलियंस अगेंस्ट द हाई हैंडेडनेस ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स. The movement of the non-cultivation of indigo during 1858 to 60, मतलब इन 2 सालों में फार्मर्स ने डिसाइड कर लिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू कल्टिवेट इंडिगो.
It covered a very vast area of Bengal and Bihar, including the districts of Nadia, Jessore, Palaman, Maldah and Rajshahi. इन सारे districts के farmers have decided that they are not going to grow indigo. The planters tried their best to stop the movement by force. Planters ने पूरी कोशिश करी थी कि है ना ये मूवमेंट ना हो. कौन है वो? इंडिगो प्लांटर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स. पूरी कोशिश करी कि ये रिवोल्ट ना हो. And the government also threatened the cultivators. प्लांटर्स ने भी कोशिश करी और गवर्नमेंट ने भी डराया धमकाया कल्टीवेटर्स को विथ डायर कॉन्सिक्वेंसेस कि तुम्हें इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा. ये धमकी दी गई कल्टीवेटर्स को इफ दे रिफ्यूज टू सो इंडिगो, कि अगर उन्होंने इंडिगो नहीं बोया तो उन्हें बहुत बुरा होगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा. लेकिन कल्टीवेटर्स ने ध्यान नहीं दिया. अ मेजॉरिटी ऑफ द कल्टीवेटर्स स्टूड फर्म, लेकिन वो अपने इरादे के पक्के थे. वन ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर्स हाजी मुल्ला ऑफ निश्चिंदीपुर सेड, ये कल्टीवेटर थे, इन्होंने बोला आई वुड रादर बेग देन सो इंडिगो, कि मैं भीख मांगना पसंद करूंगा लेकिन मैं अपने खेत में इंडिगो नहीं लगाऊंगा. When they were pressed to do the cultivation of indigo, the factories belonging to British planters like Andrews, Lyon and the like were attacked. तो फार्मर्स ने उन फैक्ट्रीज को ही अटैक करना शुरू कर दिया जहां पर इस इंडिगो यूज होता था. वो अटैक्ड एंड प्लंडर्ड बाय द कल्टीवेटर्स. कल्टीवेटर्स ने उनको तहस नहस कर दिया, है ना. Every attempt to control, है ना, these are the cultivators, Lathials and Ryots. Every attempt to control the cultivators was made, but to no avail. The planters, the British government पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से कल्टीवेटर्स को मना लिया जाए to grow indigo, लेकिन वो नहीं माने. Some cultivators like the Lathials आर्म्ड देमसेल्व्स, इन्होंने तो अपने आप को हथियार बंद कर लिया था, हथियार भी इन्होंने इकट्ठे कर लिए थे टू रेजिस्ट द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, कि हम मर जाएंगे लेकिन इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. इन दिस कनेक्शन इट हैज बीन राइटली सेड द यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंटेड बाय द पीजेंट्स, ये जो मिलकर काम कर रहे थे पीजेंट्स सारे, डिटरमिन्ड टू हैव नथिंग टू डू विद द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो. एक्चुअली में ऐसा कहा जाता है कि ये जो कल्टीवेटर्स मिलकर काम कर रहे थे कि अब हम इंडिगो नहीं उगाएंगे किसी भी हाल में. ये सिर्फ इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड बात नहीं है. थ्रेटेंड द प्लांटर्स विथ अटर र्यून, बिल्कुल बर्बाद हो सकते थे ये. एंड ओल्ड मेथड्स ऑफ आर्ट्रेज फेल्ड इन कोहर्ट्स द कल्टीवेटर्स. कुछ भी कर लो, बर्बाद होने को तैयार थे, but they were not ready to grow indigo. There was a strong demonstration against the cultivation of indigo, है ना. फिर ये तो हमने पढ़ रखा है कि बहुत ज़्यादा चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहाँ तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ, जहाँ फार्मर्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इन चंपारण बिहार इन 1866-68. देखो तब से है ये चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स, हाँ, जो बाद में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. गांधी जी ने भी अपना मूवमेंट यहीं से स्टार्ट किया था. आई होप आप लोगों ने सुन रखा है इसके बारे में. द फाइनल ब्लो टू ग्रोइंग इंडिगो केम व्हेन अ सिंथेटिक डाई वाज इन्वेंटेड. इंडिगो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, खेत में ग्रो हो रहा है ना, तो इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट. और ये लड़ाई तब खत्म हुई जब एक सिंथेटिक डाई इन्वेंट किया गया टू कलर क्लोथ्स. हाउएवर The indigo crisis continued till the beginning of the 20th century. देखो ये आ गया. When M.K. गांधी, महात्मा गांधी had to intervene, उन्हें इंटरफेयर करना पड़ा in favor of the indigo cultivators of चंपारण. तो ये इतना स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन था चंपारण में, 1866-68 से चला रहा था. और फिर महात्मा गांधी ने आकर इसमें इंटरफेयर किया in favor of the indigo cultivators of Champaran, and that was in 1916 जब गांधी जी ने इंटरफेयर किया. Laying emphasis on the importance of indigo revolt,
मतलब देखो सबसे लंबा कौन सा रिवोल्ट चढ़ा, इंडिगो रिवोल्ट है ना, चंपारण में पहले से भी होता आ रहा था और यहाँ भी हो रहा है. द फेमस हिस्टोरियन R.C. Majumdar in his history of Bengal called it, हाँ क्या नाम दिया, देखो R.C. मजूमदार ने इसकी तारीफ करते हुए क्या लिखा है, क्या नाम दिया है इस मूवमेंट को, एज अ फोरनर फॉर द नॉन वायलेंट पैसिव रेजिस्टेंस. एक लीडर है, फोरनर का मतलब आगे रहने वाला, लीड करने वाला, नॉन वायलेंट तरीके से, कोई लड़ाई नहीं, किसी को नहीं मारा गया, सिर्फ विरोध हो रहा है. लेटर ऑन सक्सेसफुली अडॉप्टेड बाय गांधी, और गांधी जी ने भी अपने सारे मूवमेंट क्या किए हैं, नॉन वायलेंस के हिसाब से, नॉन वायलेंट मूवमेंट थे. तो कहीं ना कहीं इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण वो ऑलरेडी प्रोटेस्टिंग इन अ नॉन वायलेंट वे, जिसे बाद में आके किसने लीडरशिप दी, महात्मा गांधी ने. सो दिस वॉज द रिवोल्ट्स बाय वेरियस कल्टिवेटर्स, स्पेशली द इंडिगो कल्टिवेटर्स. कैसे उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर एंड देन नेक्स्ट we will start with another lesson. Till then, keep reading.